Assalamu alaikum everyone. So welcome to another lecture of CCN theory. In the last lecture, we have started chapter number 4, that is digital transmission. Digital transmission means you are transmitting the digital signal, and normally it happens when you are doing the baseband transmission, when the channel capacity is large enough to support your digital signal. So it is also known as a line coding, and line coding or digital to digital conversion, because we have digital data at the input and we have a digital signal at the output. So that's why we call it digital to digital. These are some characteristics. On the basis of these characteristics, we choose a particular line coding because we have several types of line coding. Some of them we have already discussed in the last lecture. So, like how much bandwidth it is consuming, what whether it is tackling the baseline rendering problem, how it tackle the DC component, does it provide the self synchronization, does it have some any sort of built-in error detection and noise immunity, what is the complexity level. So these are some parameters. On the basis of that, we choose certain the line coding schemes. So line coding schemes are basically fall into three categories: unipolar, polar, and bipolar. We have discussed unipolar and polar categories. Just a quick recap: that unipolar means single polarity. So you have two bits, one or zero. So it's up to you to choose which bit will be represented by the polarity, either zero or one. It's up to you. So you can let the zero bit to be uh, represented by some polarity, whether it is positive or negative, but it should be only single polarity throughout the signal. And the rest bit, that is one bit, will be represented by the zero. So one thing is also uh, uh, clear, that line coding or digital to digital encoding is basically signal representation. um, how to represent bits into the signal. It is known as a signal encoding scheme. How to represent bits into signal. You have bits, you are representing by the signal. You have bits, you are representing by the signal. This is line coding. So unipolar means only single polarity. We have discussed NRZ. What is NRZ in the last lecture, last week? In polar scheme, it means that now we have two polarities. We can have two polarities, positive polarity and negative polarity. Now again, it's up to you which bit you use to represent from which polarity. Like 0 can be represented by positive polarity or negative. Likewise for the 1 bit. But you have to decide prior to draw a signal. At the start, you have to mention the rules, that I will represent 0 by positive polarity, or I will represent 0 by negative polarity. Then we have also discussed return to zero concept. What is meant by return to zero concept? What is the difference between Manchester and differential Manchester? And in the last, uh, we discussed the AMI and pseudo ternary encoding schemes in the last week. So we have covered all these encoding techniques in the last week. From AMI perspective, it falls under a category of bipolar. Bipolar means two polarity. And in polar schemes, we also seen we have two polarities. But the difference between polar and bipolar is that in polar we have two polarities and both are representing two different bits, like positive polarity representing one
and negative polarity representing 0. But in bipolar scheme, we still have two polarities, but both will represent the same bit. Like positive, like I'm going to MI and showing the concept basically that first time the one bit is represented by some positive polarity. Next time when one occur, it will representing by the negative polarity. So it is toggling between the polarity. So we have two polarities in bipolar, but one bit is only represented by, yeah, one bit will use these two polarities and it will toggle between them. Pseudo अच्छा, AMI stand for alternate mark inversion. Alternate means वही toggling, ठीक है. Mark means one and I means inversion, यानी कि जब one आएगा तो it will invert the polarity alternatively. ठीक है, तो दिस इज ओरिजिनल AMI जिसके अंदर वन के ऊपर ऑल्टरनेट या इन्वर्जन की जाती है. सूडो टर्नरी इज द फेक AMI जिसके अंदर जीरो पे जो है वो ऑल्टरेशन की जाएगी. सो अप till now we have covered in the last class that what I have recapped here. Another perspective, this is only the concept perspective. Now another perspective of discussing this encoding scheme will be these characteristics. जैसे कि NRZ को अगर कॉम्प्लेक्सिटी वाइज देखें तो बहुत ही इसकी सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या इट इज़ वेरी सिंपल टू बिल्ड. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कोई खर्चा ज़्यादा नहीं है. लेकिन और अच्छा, दूसरी बात क्या, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती. नॉर्मल जितना बिट रेट है उतनी ही बैंडविड्थ डिमांड करेगा. लेकिन बेस लाइन वेंडरिंग की प्रॉब्लम आपको एनआरजेड में मिलेगी, डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम मिलेगी, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करता ये स्कीम. इसी तरीके से बिल्ट इन एरर डिटेक्शन भी इसमें नहीं है. तो ये इसके फीचर्स थे. एनआरजेड हो यूनिपोलर का या पोलर का, सेम फीचर्स हैं. रिटर्न टू जीरो के अंदर हमारे पास था मैनचेस्टर या डिफरेंशियल मैनचेस्टर. मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर दोनों ही हमें जो है सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दे देते हैं, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का फीचर अवेलेबल है इनके अंदर. ठीक है, बेस लाइन की वेंडरिंग से बचाते हैं, डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड करवाते हैं. ठीक है, लेकिन बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी. ठीक है, तो बैंडविड्थ की वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से भी कॉस्ट बढ़ेगी. ठीक है, AMI को अगर हम इस नज़रिए से देखें तो AMI की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, सिमिलर है टू द NRZ, या कम कह सकते हैं कि आधी है एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर. ठीक है, बेस लाइन वेंडरिंग या डीसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम को पार्शियली सॉल्व कर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे AMI को अगर हम देखें तो इसमें वन को टारगेट कर रहा है. तो अगर बहुत सारे वंस आ जाते हैं जिसकी वजह से बेस लाइन वेंडर कर रही थी, हमने देखा था लास्ट टाइम, तो ये वन को तो टैकल कर लेगा लेकिन जीरो को नहीं करेगा. ठीक है, इसी तरीके से सूडो टर्नरी जीरो को टैकल कर लेगा और वन को नहीं करेगा. तो यानी कि इसकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब AMI की. और ये आपकी बेसलाइन या डीसी कंपोनेंट की जो प्रॉब्लम है उसको पार्शियली सॉल्व कर रहा है. इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है. तो दिस सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू अदर, और दैट्स व्हाई AMI इज यूज वाइडली. ठीक है, इन वाइड एरिया नेटवर्क्स. जबकि जो आपकी मैनचेस्टर या डिफरेंशियल मैनचेस्टर है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज हो जाती है. लेकिन AMI is not used in simpler form, it is scrambled basically. ठीक है, अभी जो मैंने आपको दिखाया है AMI की वेव फॉर्म या सूडो टर्नरी की वेव फॉर्म, ये इसकी प्योर वेव फॉर्म है. जब भी ये जो प्रॉब्लम है वेस्ट लाइन वेंडरिंग और डीसी कंपोनेंट की, इसको पार्शियली सॉल्व कर रहा है. बट वी वांट द परफेक्ट सॉल्यूशन, वी वांट द कंप्लीट सॉल्यूशन कि भाई अगर बेस लाइन की वेंडरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही ठहरा तो फिर पूरा सॉल्व किया जाए ना. ठीक है, सो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है, जो यानी कि जो AMI, जैसे मैंने आपसे कहा कि AMI इज वाइडली यूज्ड बट नॉट इन इट्स रॉ फॉर्मेट. दिस इज रॉ फॉर्मेट, दिस इज ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द AMI. इट इज यूज्ड विद सम scrambling technique. ठीक है, AMI is normally used with some scrambling technique.
मसला क्या था कि एक्चुअली मुझे दोबारा बताना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय बेसलाइन वेंडरिंग। प्रॉब्लम इज दैट जब आपके डेटा के अंदर बहुत सारे वंस एक साथ आ जाते हैं या बहुत सारे जीरोस एक साथ आ जाते हैं, तो रिसीवर की जो डिटेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि रिसीवर जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम एवरेज वैल्यू। यानी कि वो दो बिट्स की एवरेज वैल्यू निकालता है। लेट्स सपोज पहली बिट है 0, दूसरी बिट है 1, तो इन दोनों की एवरेज आ गई 0.5 लेट्स सपोज। तो वो फैसला करेगा कि अगर 0.5 से वोल्टेज ज्यादा है तो इसका मतलब 1 ट्रांसमिट हुआ था, और अगर 0.5 से कम है तो जो है वो 0 ट्रांसमिट हुआ था। तो 0.5 इज द बेस्ट लाइन जो उसने इन दोनों बिट्स के लिए क्रिएट की। लेकिन अगर अगली दो बिट्स और उनके बाद भी दो बिट्स 1 1 ही आ जाती हैं या 0 0 ही आ जाती हैं, यानी कि मुसलसल 0 या मुसलसल 1 अगर आ जाता है, तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वो बार बार कैलकुलेट करता है। ठीक है। तो इस एवरेज के डिस्टर्ब हो जाने से उसकी डिटेक्शन गलत हो जाएगी और वो रॉन्ग डिटेक्ट करेगा मैसेज को। एएमआई के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर लॉन्ग चेन ऑफ वंस आता है तो क्योंकि वन ऑल्टरनेट कर रहा है, ठीक है, अपनी इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी, तो उसकी बेसलाइन जो है वो वेंडर नहीं करेगी। लेकिन अगर मुसलसल जीरो आते जाएंगे तो उसकी बेसलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी एज कम्पेयर टू व्हाट इट शुड बी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बेसलाइन की वेंडरिंग की जो प्रॉब्लम है उसको पार्शियली सॉल्व करता है, कि 1 के लिए सॉल्व कर दिया, 0 के लिए नहीं किया, या 0 के लिए कर दिया तो 1 के लिए नहीं किया। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मली यूज्ड विद सम स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। और उस स्क्रैम्बलिंग टेक्निक का मकसद क्या होता है कि जब लॉन्ग चेन्स ऑफ जीरोस आ जाएं तो उसको किसी डिजायर्ड सीक्वेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि पोलैरिटी जो है ना वो जीरो ना हो जाए, डेड ना हो जाए, उसमें कुछ जो है वो तब्दीली में जो है मैसर मौजूद रहे। तो इनको हम वायलेटेड डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, या आप सिंपल बोल देंगे कुछ एक एडिशनल बिट्स हमने उसमें ऐड कर देंगे जब हमारे पास जीरो की तादाद ज्यादा होगी। ठीक है। यानी कि अगर कंसेक्यूटिव जीरोस आते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस अगर आते हैं, तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सम नोन पैटर्न, जिसको यहाँ पे वायलेटेड डिजिटल सिग्नल के नाम से जाना जा रहा है। तो दिस इज व्हाट इज एएमआई विद स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। यानी कि नॉर्मल एएमआई का फॉर्मूला चलेगा, यानी कि उसके तहत आपका सिग्नल बन जाएगा। फिर उसमें जब भी कोई लॉन्ग चेन्स ऑफ जीरोस आएंगी तो फिर वो एक सीक्वेंस से रिप्लेस हो जाएंगी। कैसे? दिस इज द सीक्वेंस। तो हमारे पास स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स भी दो हैं। पहली है B8ZS, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है बायोपोलर विथ 8 0 सब्सटीट्यूशन। बायोपोलर 8 0 सब्सटीट्यूशन टेक्निक है। पहला रूल याद रखें कि अगर आप MI यूज कर रहे हैं और आप B8ZS यूज करना चाहते हैं, तो इट कैन ओनली बी अप्लाई ऑन दी 8 कंसेक्यूटिव जीरोस। अगर 8 कंसेक्यूटिव जीरोस आते हैं तभी आप उस 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं स्क्रैम्बलिंग टेक्निक से। ठीक है, पहली बात। तो जब भी 8 consecutive zeros आएंगे तो you will replace those 8 zeros by some tech by by some predefined encoding that is known as 00VB or 0VB। अभी क्या करना है, कैसे करना है इसमें जो है वो आपको ये देखना। अच्छा, इसमें V का मतलब क्या है और B का मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड, टैक्स कैसे आएगा। V means तो V का मतलब होता है वॉयलेशन, और B का मतलब होता है बायपोलर या अपोजिट पोलैरिटी। ठीक है जनाब। तो मैं यहाँ ही यही सिग्नल बना लेता हूँ।
कि लेट सपोज, एक सेकेंड, अच्छा सही। तो लेट सपोज के ये जो पिंक के अंदर मैंने ड्रॉ किया है ऊपर, ये मेरा AMI का सिग्नल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, AMI का सिग्नल मैंने ड्रॉ कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 था, तो मैंने एक पल्स ड्रॉ कर दी, बाकी सारी 0 हैं। तो मेरे पास, मैंने काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी मेरे पास AMI के अंदर 8 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे तो फिर मैं उसको किसी पैटर्न से रिप्लेस कर दूंगा, और वो पैटर्न क्या है, 0 0 VB हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। ठीक है, 0 VB, ये पूरा पैटर्न है। पैटर्न का नाम, पैटर्न क्या है, 0 0 0 VB 0 VB। दिस इज अ पैटर्न जिससे मुझे इसको रिप्लेस करना है। यानी कि ये जो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ, नजर आ रही है ना आपको, दिस, ये जो एरिया है जहां 8 कंसेक्यूटिव जीरोस आए हैं, इस इन नंबर ऑफ बिट्स को मुझे रिप्लेस करना है इस नॉन पैटर्न से। दैट इज, ये आपको याद रखना है, 0 0 0 VB और 0 VB। इसमें V का मतलब क्या है, वॉयलेशन बिट है, और इसका मतलब, B का मतलब क्या होता है, बायोपोलर। अब वॉयलेशन का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉयलेशन का मतलब होता है कि खिलाफ वर्जी करना बायोपोलर स्कीम का। खिलाफ वर्जी से मुराद क्या थी कि बायोपोलर, सॉरी, AMI स्कीम ये कहती है कि जब भी 1 आएगा तो 1 ऑल्टरनेट करेगा। आ रही बात समझ में? यूं समझ लें कि V भी एक पल्स है और B भी एक पल्स है। इसी तरीके से दोबारा जो V, तो ये पल्स की पोलरिटी क्या होगी, तो V क्या करेगा, अपनी पोलरिटी की खिलाफ वर्जी करेगा। यानी कि अब एक दफा पोलरिटी इस तरह आ गई है तो नेक्स्ट पोलरिटी जो है वो इस तरह बननी चाहिए। ठीक है, अगर एक ऐसी आ गई है तो नेक्स्ट ऐसी बननी चाहिए, यानी कि नेगेटिव। लेकिन V इस बात की खिलाफ वर्जी करेगा और इट विल फॉलो द सेम पोलरिटी एज अपोजिट। तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये हुआ सेम पोलरिटी एज प्रीवियस। ठीक है, और बायपोलर क्या करेगा, अपोजिट पोलरिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूं तो इट इज 0 0 0, तो यहाँ पे V आएगा। ठीक है, 0 0 0 V, और यहाँ क्या आएगा, B, फिर 0, फिर V, और यहाँ पे B। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, निशानदेही लगा दी कि भाई यहाँ तो 0 यानी कि कोई पल्स नहीं है। ठीक है, और फिर इधर भी कोई पल्स नहीं है, इधर भी नहीं है। अब यहाँ V है, यहाँ B है, फिर यहाँ 0 है, यहाँ V है, यहाँ B है। ठीक हो गया। तो अगर ये पहली पल्स ऐसे आ गई है, ठीक है, तो V जो है वो सेम पोलैरिटी को फॉलो करेगा या वॉयलेशन करेगा, ये एक ही बात है। वॉयलेशन का मतलब क्या है कि भाई उसूलन अब V को नीचे बनना चाहिए था, लेकिन V जो है वो ऊपर बन जाएगा इस तरह, जिस तरह यहाँ बन गया है। B जो है वो अपोजिट पोलैरिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस, तो ये B बन गया। ठीक है, अब क्या है, एक 0 छोड़ दिया हमने, अब V आया। V जो है सेम पोलैरिटी फॉलो करता है,
और बी जो है वो अपोजिट पोलरिटी फॉलो करता है। मैंने यहाँ अभी वी लिख दिया था गलती से, तो ये इस तरह, इसको दोबारा देख लें। हम्म, तो जब आपके पास 8 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, यू विल रिप्लेस देम बाय 0 0 0 VB 0 VB, यानी कि शुरू में 3 जीरो, फिर VB, फिर 0, फिर एक VB। अब ये VB क्या होता है, इसकी पोलरिटी चेंज हो सकती है। V जब भी आएगा, इट विल फॉलो द सेम पोलरिटी एज प्रीवियस, और B जो है वो अपोजिट पोलरिटी को B जो है वो अपोजिट पोलरिटी फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि प्रीवियस पोलरिटी क्या थी। इस जो फिगर ए है, इसमें जो प्रीवियस पोलरिटी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो वी विल फॉलो द सेम पोलरिटी, तो वो भी पॉजिटिव आ गया। उसके बाद बी है, बी हैज अ अपोजिट पोलरिटी, तो बी आपके पास अपोजिट पोलरिटी आ गया। इसके बाद एक जीरो देकर दोबारा वी आ रहा है, तो वी विल फॉलो द सेम पोलरिटी एंड बी विल फॉलो द अपोजिट। तो इस तरह हमने इन 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से ये, अब क्या है कि अब जो प्रीवियस पोलरिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 0 0 और ये V, तो V विल फॉलो द सेम पोलरिटी या वॉयलेशन करेगा, क्योंकि MI का तो रूल ये था कि अगर एक पहली पल्स नेगेटिव है तो अगली पॉजिटिव आएगी, अगर पहली पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव आएगी, यानी कि ऑल्टरनेट करेगा। लेकिन V वॉयलेशन करता है इस बात की, और V विल फॉलो द सेम पोलरिटी, तो ये सेम हो गई, ये अपोजिट हो गई, ये सेम हो गई, ये अपोजिट हो गई। तो दिस इज हाउ इफ यू आर यूजिंग B एट ZS स्कीम, तो आप पहली बात तो ये कि आप इसको MI के साथ यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव 8 कंसेक्यूटिव जीरोस, अदरवाइज अगर 7 भी हुए तो ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास 16 कंसेक्यूटिव जीरोस आ जाएं, तो फिर आप शुरू में 8 पे लगाएंगे, फिर बाकी 8 पे अलग लगेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर हम आगे चलें। रिजवान, कुछ पूछना है आपको? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर इसमें क्या नाम है, पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो वी और पॉजिटिव में और वी नेगेटिव में सर सेम, हमें सेम चीज़ फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा एलेबरेट कर दें सर। अभी मैंने आपको बताया कि, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि स्लाइड पे भी रहे। वी मीन अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि V, देखें सबसे पहली बात B एट जेड एस, ठीक है, B एट जेड एस कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास 8 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे, ठीक है। So if we have this kind of situation 1 2 3 4 5 6 7 8, तब हम B एट जेड एस लगा सकते हैं, ठीक है। लगानी कैसे है कि इन 8 जीरोस को आप रिप्लेस करेंगे 0 0 0 VB 0 VB से, ठीक है। पहली बात कि 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को रिप्लेस करना है 0 0 0 VB और 0 VB से। इस VB का मतलब क्या है कि V का मतलब होता है वॉयलेशन बिट, ठीक है। वॉयलेशन बिट का मतलब ये होता है कि ये जो AMI का रूल था जो हमने यहाँ देखा था, एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड में हम देखें, ये हमारा AMI का रूल था कि जब भी 1 आएगा ये ऑल्टरनेट करेगा, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी, दोबारा 1 आया तो नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है। तो इस बात की खिलाफ वर्जी करते हुए वो क्या कर रहा है कि जो भी पुरानी पोलैरिटी थी वो वही पोलैरिटी वापस ले आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वॉयलेशन बिट। तो या तो आप इसको वॉयलेशन के नाम से याद कर लें, या ये बात याद रख लें कि वी विल फॉलो द सेम पोलैरिटी एज प्रीवियस, ठीक है। और बी जो है, यस सर। बी जो है, टैक्स लिया मैंने यार, बी मींस, ठीक हो गई बात। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये तो मेरी नॉर्मल AMI बन गई, क्योंकि AMI कहता है कि भाई जब भी 1 आएंगे तो आप अपनी पोलैरिटी को ऑल्टरनेट करोगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ विद स्क्रैम्बलिंग टेक्निक। तो 0 0 0, यहाँ पे V है, ये B है, फिर 0, यहाँ पे V है और यहाँ पे B है। तो V will have the same polarity, तो it will be same polarity का मतलब क्या है, जो प्रीवियस होगी वही आ जाएगी। और B will have opposite polarity, ठीक है। ये अपोजिट पोलैरिटी बन गई, ये आपका 0 के लिए होगा। अब क्या है, दोबारा V आ गया, तो V will have the same polarity। सेम का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस है, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है, जो उससे पिछली पोलैरिटी थी वो ही फॉलो करेगा, और B उसकी अपोजिट, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज जो प्रीवियस पोलैरिटी थी वो नेगेटिव है। लेट सपोज सिग्नल का लेवल यूं था और अभी उसने 1 को इस तरह रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो दिस इज माय ओरिजिनल AMI सिग्नल, ठीक है। आई हैव 8 consecutive 0 0 0 0 V B 0 V B, ठीक है। तो मैं इनको कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे V है, V will follow the same polarity, तो same polarity का मतलब यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। और उसके बाद है B, तो B will have opposite polarity। यानी कि अब आप ये देख सकते हैं कि जो लॉन्ग चेन्स ऑफ जीरो थी वो टूट गई और हमारे पास ऑल्ट्रेशन आ गई या इन्वर्जेंस आ गई। अब क्या है, B V है, V will have the same polarity। तो यहाँ देखें पॉजिटिव पोलैरिटी, प्रीवियस पोलैरिटी पॉजिटिव थी, तो ये पॉजिटिव बन गया, और B will follow the negative polarity, तो ये नेगेटिव बन गया। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो रिजवान ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा पूछ सकते हैं।
यस सर, हमारे पास क्लियर हो गया। हमारे पास आगे एक और एग्जांपल आ रही है, तो उसमें भी हो सकता है जो क्लियर हो जाए। नहीं नहीं सर, क्लियर है, थैंक तो यू सर। रिमूव कर देता हूँ। थैंक यू। एक तो आई थिंक ये जूम जो है ना अपडेट हुआ है, तो कुछ फीचर्स इसके चेंज हो गए हैं। अच्छा चले, तो ये बता रहा है कि बी एट जेड एस सब्सिट्यूट करता है 8 कंसेक्यूटिव जीरोस को विद 0 0 0 वीबी और 0 वीबी से। ठीक है, ये हमने समझ लिया। दिस इज अनदर, अच्छा ये तो एच डी बी थ्री आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो हैं स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स, जिस तरह यहाँ इसने बात की कि एम आई इज यूज विद scrambling technique. So we have two scrambling technique. We have learned B at ZS, ठीक है, बाइनरी 8-0 सब्सटीट्यूशन, जो कि 8 कंसेक्यूटिव जीरोस पे अप्लाई होती है। तो अगर हमारे डेटा में 8 जीरो आएंगे तो ही ये चल सकता है। ठीक है, 8 आए, 16 आए, लेट सपोज 15 आ गए, तो आप पहले के 8 पे लगा देंगे, बाकी के 7 को रहने देंगे। ठीक है, तो दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 8। 8 से कम पे मामला नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा अब है एच डी बी थ्री, हाई डेंसिटी बायोपोलर 3-0 सब्सटीट्यूशन है ये। हाई डेंसिटी बायोपोलर 3-0 सब्सटीट्यूशन, ठीक है, नाम में 3-0 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये 4 कंसेक्यूटिव जीरो पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं साथ साथ टेक्स्ट लिखता रहता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। 4 जीरोस पे अप्लाई होता है। ठीक है, बी एट जेड एस में हमारे पास एक ही वो थी सीरीज जिसको हमें अप्लाई करना होता था, लेकिन वी हैव टू सीरीज हेयर। वन इज B00V और दूसरी है 000V। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स हैं, सॉरी दो सीरीज हैं। अब आप देख सकते हैं B00V कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि अगर 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे तो मैं उनको B00V से रिप्लेस कर सकता हूँ या 000V से रिप्लेस कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई आई राइट एट द अबव के ये जो स्कीम है ये 4 जीरो पे अप्लाई होती है। बी एट जेड एस जो थी उसके लिए शर्त क्या थी कि 8 जीरो होंगे तो ही चलेगी, इसके लिए शर्त ये है, यानी कि इसकी शर्त थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। अब अगर 4 जीरोस भी आ गए तो अब आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, मिक्सिंग नहीं करेंगे कि एच डी बी थ्री भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, कोई एक आप करेंगे एक वक्त में। ठीक है, अच्छा अब कब B00V लगाना है और कब 000V लगाना है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास 4 कंसेक्यूटिव जीरो, अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जब भी आपके पास 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आएंगे तो उससे पहले पहले तक आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन गिननी है। ठीक है, कि कितनी दफा पोलैरिटी चेंज हुई है। ठीक है, इफ द पोलैरिटी चेंज इज इवन तो आप रिप्लेस करेंगे अगले 4 कंसेक्यूटिव जीरोस को B00V से। ठीक है, उसके अब आपने लेट्स सपोज रिप्लेस कर दिया, अब दोबारा 4 जीरोस आ जाते हैं, देन अगेन यू विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन कि वो इवन है या ओड है, पोलैरिटी इवन दफा चेंज हो रही है या ओड दफा चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर वो इवन है तो दोबारा आप B00V से रिप्लेस कर दें, अगर ओड है तो फिर 000V से रिप्लेस कर दें। आ रही है बात समझ में? तो इसको ड्रॉ करते हैं और काउंट भी करते हैं साथ साथ। तो ये 4 जीरोस आ रहे हैं मेरे पास शुरू में, मैंने एक बॉक्स बना दिया इन 4 जीरोस के ऊपर, यानी कि मेरे पास एक स्कीम आई। अभी आप नीचे वेवफॉर्म को नहीं देखें, आप सीक्वेंस को देखें 1 जीरोस की। तो मेरे पास शुरू में 2 वंस हैं, फिर 4 जीरोस आ गए, यानी कि 4 जीरोस आ गए, तो बस अब मैं अब यहाँ रुक जाऊंगा
और पहले मैं काउंट करूंगा कि भाई मेरे पास कितनी दफा ट्रांजिशन हुई है। तो मेरे पास जो है वो एक दफा ये ट्रांजिशन है, एक दफा ये ट्रांजिशन है। तो मेरे पास कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस हैं? 2 ट्रांजिशंस हो गई, यानी कि इवन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मेरे पास मौजूद हैं। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट सपोज ये तो एएमआई का रूल था कि भाई एक ट्रांजिशन पॉजिटिव तो एक ट्रांजिशन नेगेटिव अगर वंस आ रहे हैं। तो आई हैव 2 नंबर ऑफ ट्रांजिशन। सो अब मेरे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांजिशन हैं। सो आई विल रिप्लेस देम विथ, ठीक है, तो मैंने ई और ओ लिख दिया, यानी कि B00V से रिप्लेस करना है जब इवन हो, और ओड 000V से रिप्लेस करना है जब ओड हो। तो B00V का मतलब क्या है? B का मतलब वही है जो पिछली बार में था कि B जो है वो अपोजिट पोलरिटी फॉलो करता है और V सेम पोलरिटी फॉलो करता है। V वॉयलेशन कराता है और B फॉलो करवाता है। तो if this is the axis, ठीक है, तो अब आ गया है B। तो B की क्या होगी? अपोजिट पोलरिटी होगी, या वो फॉलो करेगा रूल को, तो ये हो गई उसकी अपोजिट पोलरिटी। अब आ गया V। V करता है वॉयलेशन, या पिछली पोलरिटी जैसी ही उसको फॉलो करता है। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है जनाब। तो ये हो गई आपकी सब्स्टिट्यूशन। अब जो है वो ये डेटा बिट आ गई है, ठीक है। तो डेटा बिट आ गई, अभी पॉजिटिव है तो डेटा बिट नेगेटिव ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ? दोबारा 4 जीरोस आ गए हैं, ये 4 जीरोस को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब मुझे इस पे सब्स्टिट्यूशन लगानी है। तो जब सब्स्टिट्यूशन लगानी है तो फिर मैं काउंट करूंगा कि मेरी कितनी ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो 1 एक दफा ये हो गई, एक दफा ये हो गई, 2 ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये हो गई 5 ट्रांजिशंस हो गई मेरे सिग्नल के अंदर। तो जब 5 ट्रांजिशन हो गई बिफोर द लास्ट सब्स्टिट्यूशन, बिफोर द मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा इससे पहले पहले तक मुझे गिननी है। तो वो हो गई 5। 5 का मतलब क्या है? ओड। ओड का मतलब क्या है? मैं 000V से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तो 00V का मतलब क्या है कि 000, ठीक है। V का मतलब क्या है? वॉयलेशन। V का मतलब क्या है? सेम पोलरिटी। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव ही बनेगी, ठीक है। अब क्या हुआ? दोबारा जो है वो आपके 4 जीरोस आ गए, ये 4 जीरोस दोबारा आ गए, ठीक है। तो यू विल अगेन यू नीड टू काउंट दी नंबर। यहाँ तक कितने हो गए थे? 5 हो गए थे, ये 6 हो गए, ऐसे ही है। तो 6 क्या है? 6 इवन है, 6 इवन है। तो V रिप्लेस विद B00V। तो यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे V आएगा। B का मतलब क्या होता है? अपोजिट पोलरिटी, और V का मतलब क्या होता है? सेम पोलरिटी। तो इस तरह हमने ये 12 हमारे जीरो थे लेकिन 4 4 के चंक में आ रहे थे, तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक एक इसमें मैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक चीज आपको और करके दिखा दूं यहाँ पे कि अभी मैंने जो पोलरिटी बनाई थी वो पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव बनाई थी, ठीक है। लेट सपोज कि हमारा सिग्नल कुछ ऐसा है कि पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या है कि अब आपने देखा कि भाई ये मेरा जो है वो एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एक्सिस हो गया। तो अब 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ गए हैं, 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ गए, आपको रिप्लेस करना है HDB3 से, ठीक है। तो रिप्लेस करने के लिए आप क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ नॉन जीरो ट्रांजिशन जो कि इवन है, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रीवियस ट्रांजिशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
फर्क किससे पड़ेगा कि कितनी ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। तो दो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ ट्रांजिशन है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगी यू विल रिप्लेस देम बाय B00V, ठीक है। तो B का मतलब क्या है, अपोजिट पोलैरिटी, तो इट विल फॉलो द अपोजिट पोलैरिटी, B हो गया ये। और जीरो क्या बनेगा, तो सॉरी V क्या बनेगा, वो ये बन गया। अब क्या आया मेरे पास, अब नॉर्मल मेरे पास डेटा की बिट आ गई तो वो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मेरे पास दोबारा 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ गए, तो अब मैं दोबारा काउंट करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पल्सेस हैं, तो आई विल रिप्लेस देम बाय 0 0 0 V, तो इट विल बी 0 0 0 सर V। V का मतलब क्या है, सेम पोलैरिटी। जी कौन बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ, अभी जो सर आपने स्टेप किया ना वो समझ नहीं आया, प्लीज ये ब्लू वाले से या येलो वाले से एक दफा फिर करा दें। अच्छा एक सेकंड, एक तो जो है ना ये इसका कोई अच्छा सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अच्छी तरह जो है ना ये लिख लें और मिटा लें। आगे चल के देखते हैं कि एग्जाम्पल है नहीं है, चलें ठीक है। तो कुछ इस तरह का डेटा था वो, 1 1 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 था, ठीक है। आसमान यही डेटा था, यस सर यही था। ठीक है। तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। क्योंकि मैंने सिर्फ सर अब हट गई। अब आ जाएगी, ठीक है। जी जी आ गई। तो भाई ये डेटा था। अब मैं अगर इस पे MI ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज ये मेरा एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, और मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ, तो लेट सपोज के ये मेरा सिग्नल बना, एक सेकंड, ठीक है। MI क्या कहता है कि भाई 1 आप अगर पॉजिटिव पोलैरिटी कर रहे हैं तो अगला 1 जो है वो जीरो हो नेगेटिव जाएगा। पोलैरिटी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहली पोलैरिटी नेगेटिव रख लेते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिग्नल की शक्ल पे नहीं जाइएगा, ठीक है। आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल कम अप विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। हो सकता है कि S1 एक सिग्नल बना रहे हो लेकिन उनकी सिग्नल की शेप डिफरेंट हो, लेकिन वो रूल सही फॉलो कर रहे हो। एज कम्पेयर टू रिजवान, रिजवान की शेप ऑफ द सिग्नल डिफरेंट हो, लेकिन रिजवान भी हो सकता है रूल सही फॉलो कर रहे हो, तो दोनों आंसर सही होंगे। तो कभी भी सिग्नल की शेप से जो है ना आप करेक्टनेस का अंदाजा नहीं लगाएंगे, रूल्स को देखेंगे कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो MI का बेसिक रूल था कि भाई अगर 1 विथ नेगेटिव पोलैरिटी रिप्रेजेंट हुआ है तो अगला 1 पॉजिटिव पोलैरिटी से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब आ गए हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव जीरोस। तो जब 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ जाते हैं HDB3 के अंदर, तो हम नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस काउंट करते हैं। ये जो दो मैंने बनाई हैं ये नॉन जीरो पल्सेस ही हैं। कितनी हैं? दो हैं, एक ये और दूसरी ये। आ रहा है मेरा कर्सर, नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। तो जब दो होंगी यानी कि जब इवन होंगी,
तो जब इवन होंगी तो हम B00V से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल है इसका। इट काउंट द नॉन जीरो पल्सेस बिफोर सब्स्टिट्यूशन। तो 4 जीरोस आ गए हैं, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, इन 4 जीरोस पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, वो B00V भी हो सकती है और वो 000V भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि नॉन जीरो पल्सेस कितनी है। तो एक ये है और एक ये है, तो 2 हो गई, तो हम इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इट विल बी B00 और V। B का मतलब होता है अपोजिट पोलरिटी, या वो रूल को फॉलो करती रहती है। तो अपोजिट पोलरिटी ऑफ एज कंपेयर टू प्रीवियस। यहां तक बात क्लियर हो गई। V का मतलब होगा सेम पोलरिटी, तो ये सेम पोलरिटी का सिग्नल बन गया। ठीक है, अब हमारे पास एक्चुअल डेटा बिट आ गई है। ठीक है, और तो वो MI के रूल से बनेगी। अगर ये नेगेटिव है तो नेक्स्ट पल्स विल बी पॉजिटिव। ठीक है जनाब, तो अब यहां तक सिग्नल बन चुका है। अब हमारे पास दोबारा 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, जब 4 कंसेक्यूटिव जीरोस आ जाएंगे तो आप क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस कितने हो चुके हैं, 1 2 5 3, ठीक है, ये 4 और ये 5 हो गए हैं। तो नाउ वी हैव odd number of pulses before substitution, so we will replace them by 0 0 0 0 V से रिप्लेस करेंगे इन 4 कंसेक्यूटिव जीरोस को। तो जीरो का V का मतलब क्या होता है, सेम पोलरिटी। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे आके ये बन जाएगा। ठीक है, अब दोबारा 4 जीरोस आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने हो गए थे, 5 नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस, ऐसा ही है। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या है, इवन। तो वी विल रिप्लेस विद B00V। ठीक है, तो B विल फॉलो द अपोजिट पोलरिटी एंड V विल फॉलो द सेम पोलरिटी। तो ये हमारा सिग्नल बन गया। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग पल्सेस थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि भाई पहली नेगेटिव है और बाद वाली पॉजिटिव, लेकिन इस स्लाइड के अंदर इसने क्या अज्यूम किया हुआ है कि पहली पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। इस वजह से इसकी जो सिग्नल की शेप है वो बिल्कुल मिरर इमेज है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो अगर हम शेप को देखें तो हम कहेंगे भाई शेप तो दोनों डिफरेंट है, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लाइन कोडिंग की खूबसूरती यही है, या इस टॉपिक की या इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ रूल्स फिक्स हैं और कुछ रूल्स रिलैक्स्ड हैं। अब HDB3 में जो फिक्स रूल क्या है कि भाई 4 जीरोस आएंगे तो ही रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, 5 पे नहीं होगी, 3 पे नहीं होगी, या 5 अगर आ गए तो 4 पे हो जाएगी, एक को आप छोड़ दें। ठीक है, रिलैक्स की क्या बात है कि भाई कुछ भी हो सकता है, पिछली बिट पॉजिटिव पोलरिटी भी हो सकती है, नेगेटिव पोलरिटी भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से ही सिग्नल ड्रॉ होगा। ठीक है, सिग्नल की शेप पे कोई कमेंट नहीं है, सिग्नल की शेप डिपेंड कर रही है कि आपकी पोलरिटी क्या है। हो सकता है जब मैं पेपर में सवाल दूं तो मैं आपको इस बात की इंडिकेशन करा दूं कि प्रीवियस बिट क्या है। ठीक है, प्रीवियस पोलरिटी क्या है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेम शेप का सिग्नल बनाएं। लेकिन अगर मैंने आपको प्रीवियस बिट के बारे में नहीं बताई कि भाई ये पोलरिटी आया पहले पॉजिटिव बनेगी या बाद में नेगेटिव बनेगी, या पहले नेगेटिव बनेगी और बाद में पॉजिटिव, अगर ये मैंने नहीं बताया तो इट्स अप टू यू। ये चीज रिलैक्स्ड है। इसी तरीके से हमने पिछली जो टेक्निक्स पढ़ी थी NRZ वगैरह, उसमें सब में कुछ रूल्स फिक्स थे
भाई जैसे NRZ है, उसमें ये था कि आप एक पोलरिटी को पकड़ेंगे और उससे 1 को या 0 को रिप्लेस कराएंगे। अब वो पोलरिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, तो ये आप पे छोड़ दिया। ठीक है, तो HDB3 समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। असफन यार, आपको शायद समझ में नहीं आया था। सर आ गया सर। तो मैंने एक्चुअली जानबूझ के वो पेन पे जाके ड्रॉ किया और सेम सिग्नल नहीं ड्रॉ किया, ताकि इस बात को एम्फेसिस किया जा सके कि शेप को नहीं देखें। आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो यू विल कम अप विद द करेक्ट आंसर, नो मैटर कि सिग्नल की शेप कैसे बनती है। ठीक है, तो ये टॉपिक लाइन कोडिंग का कम से कम खत्म हो गया। आगे देखते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसको भी। ट्रांसमिशन मोड, अब आपने देख लिया कि भाई लाइन कोडिंग का मतलब है कि सिग्नल, अब एक सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन हो गई बिट्स से, अब वो एक सिग्नल की शक्ल में आ चुका है। अब जो है वो सीरियली ट्रांसमिट भी हो सकता है और पैरेलल ट्रांसमिट भी हो सकता है। सीरियल के अंदर क्या होता है कि यू हैव सिंगल केबल टू कैरी ऑल द सिग्नल, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो कम हो जाएगी, यानी कि फास्टर नहीं होगा, लेकिन आपका खर्चा कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही केबल लगानी है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। पैरेलल ऑन द अदर हैंड विल नीड मल्टीपल वायर्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल साइमल्टेनियसली, या साइमल्टेनियस बिट्स ट्रांसमिट कर सकता है। अमूमन जो कम्युनिकेशन होती है इनसाइड द कंप्यूटर, लेट्स सपोज फ्रॉम हार्ड डिस्क टू माइक्रो प्रोसेसर या हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड, वो पैरेलल होती है। लेकिन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर वो सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हम फिर पैरेलल कम्युनिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड अदर इश्यूज। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है कि जब सीरियल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है कि भाई आपके पास 8 वायर हैं लेट्स सपोज, तो आपको पता है कि पहले वायर पे पहली बिट आएगी, दूसरे वायर पे दूसरी बिट आएगी, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो सिंक रहते हैं। लेकिन जब आप सीरियल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज आप सीरियल बिट्स भेजे जा रहे हैं, तो देयर मे बी अ सिंक्रोनाइजेशन इशू। तो दो तरह से सीरियल ट्रांसमिशन की जा सकती है, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, ये तो खैर डिफरेंस बता दिया सीरियल और पैरेलल का। अब हम देखते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर क्या हो रहा है कि अगर वो एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस में क्या होता है कि रिसीवर और ट्रांसमीटर जो हैं वो सिंक नहीं होते, यानी कि उनको टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि बिट टाइम कितना है या व्हाटएवर। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बिट्स का सहारा लिया जाता है कि क्योंकि रिसीवर है ब्लाइंड, ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए लेट सपोज कोई एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लिया, जैसे कि इन्होंने 0 यूज कर रहे हैं टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द बिट्स, स्टार्ट ऑफ द बिट। अब जब यानी कि जब भी ट्रांसमीटर जो है वो डेटा भेजना शुरू करेगा, तो वो सबसे पहले कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जिस तरह यहाँ 0 शो कराया गया है, वो ट्रांसमिट करेगा, ताकि रिसीवर जो है वो जो है अलाइव हो जाए। रिसीवर अगर जो है आइडियल हो चुका था तो वो अलाइव हो जाएगा। तो स्टार्ट बिट को जैसे ही उसको स्टार्ट बिट मिलेगी तो वो समझ जाएगा कि अब डेटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वी सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स, जिसको हम कहते हैं कि स्टार्ट बिट। फिर हम इस तरह एक स्पेशल बिट्स भेजते हैं जो टू इंडिकेट कि भाई अब डेटा खत्म हो गया है, स्टॉप बिट। और उसके बाद गैप आ जाता है, यानी कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है ट्रांसमीटर जो है वो खामोश हो जाए, क्योंकि डेटा इन एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस की एग्जांपल क्या है कि लेट सपोज मैं कीबोर्ड पे टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने लेट सपोज अभी 8 टाइप किया, तो इससे जो भी बिट्स जनरेट होंगी वो मेरे लेट सपोज कीबोर्ड की मेमोरी से निकल के प्रोसेसर तक जाएंगी, ताकि वो उनको प्रोसेस करे और स्क्रीन के ऊपर वो करेक्टर शो हो जाए। तो जब ये बिट्स जनरेट होंगी, तो यानी कि जब ये डेटा जनरेट हुआ, तो कीबोर्ड का जो ट्रांसमीटर था लेट सपोज उसने क्या किया कि कुछ स्टार्ट बिट्स लगा दी, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो प्रोटोकॉल पे डिपेंड करते हैं, ताकि जो मेरा रिसीवर है, जो मेरा प्रोसेसर है, उसको पता चल जाए कि अब डेटा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि डेटा एसिंक्रोनस है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, और डेटा जाना भी सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू है।
तो जब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर एसिंक्रोनस होता है, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, तो वहां पे इन एक्स्ट्रा बिट्स का सहारा लेना पड़ता है टू लेट द रिसीवर नो कि व्हेन द डेटा इज कमिंग एंड व्हेन द डेटा इज गोइंग टू बी एंड। ठीक है। दूसरी स्कीम क्या है सीरियल के अंदर, आपकी सिंक्रोनस। अब क्या है कि ट्रांसमीटर नोस के हाउ मेनी बिट्स ही इज गोइंग टू सेंड इन अ सेकंड। तो वो क्या करता है कि उस मैसेज को पूरा एक फ्रेम की शक्ल दे देता है। फ्रेम इज सम सॉर्ट ऑफ बिगर बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे आपकी बिट्स आ जाती हैं। लेट सपोज यहाँ पे अब उसको पता है कि एक फ्रेम में 8000 बिट्स आएंगी। ठीक है, तो ये उसकी टाइमिंग इंफॉर्मेशन है। तो वो फ्रेम 1 भेजेगा, फिर फ्रेम 2 भेजेगा। ठीक है, फिर एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम कितनी देर के बाद आएगा, ये भी टाइमिंग फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ ये जो टाइमिंग इंफॉर्मेशन है ये रिसीवर को भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो है बिट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे टाइमिंग किरदार अदा कर रही होती है कि भाई लेट सपोज पहले 1 सेकंड में एक फ्रेम आएगा, फिर अगले 1 सेकंड में दूसरा फ्रेम आएगा। एक फ्रेम में कितनी बिट्स हैं, उन बिट्स का क्या टाइम है, तो वो सारी टाइमिंग पहले प्रायर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा बिट्स तो नहीं भेजी जाती, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले सिंक्रोनाइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिसीवर को भेज दी जाती है, जिसको हम कहते हैं हैंड शेक प्रोसेस, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर पहले हैंड शेक करते हैं, यानी कि वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसमें क्या है कि लार्जर ब्रंच ऑफ डेटा आप एक वक्त में भेज सकते हैं, क्योंकि रिसीवर जो है वो सिंक होता है और वो डेटा रिसीव कर सकता है। उसको प्रोसेस, अब उसको खुद प्रोसेस करना है इस फ्रेम को, फिर वो तोड़ेगा पैकेट्स मतलब के अंदर, और ये अलग अलग जो पैकेट हैं बिट्स के उनको अलग करेगा, क्योंकि उसके पास टाइमिंग इन्फॉर्मेशन है कि इस फ्रेम में कितनी बिट्स हैं, उसमें कितने मैसेजेस हैं, उस एक मैसेज में कितनी बिट्स हैं। तो वो उनको खुद अलग करेगा, ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ट्रांसमीटर खुद अलग अलग करके उनको भेज रहा है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता कि कब कौन सी बिट्स, कब कौन सा डेटा आना है, क्योंकि थिंग्स आर एसिंक्रोनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया है, और चैप्टर 5 जो है बेसिकली वो एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन है, क्योंकि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। देयर इज ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन, that is nothing new but simply analog modulation and frequency modulation and pulse modulation। तो ये चैप्टर मैं स्किप करूंगा क्योंकि ये हेविली लाई करता है फ्रॉम कम्युनिकेशन सिस्टम कोर्स। ठीक है, एंड सिंस कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ प्रीरेक ऑफ दिस कोर्स, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप लोगों ने लाजमन पढ़ा ही होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा तो जो है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी अलाउ कर दिया कि जिनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्लियर नहीं है, तो वो लाजमन इस चीज़ को पढ़ लेंगे। चैप्टर 6 जो है वो है मल्टीप्लेक्सिंग का, तो फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। बाकी लैब जो है मैंने लास्ट टाइम कराई थी, तो हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तक हम आ चुके हैं राउटर की। अब हम नेटवर्क इंशाल्लाह उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग जो है ना वो एंड